So we'll start with today's session with very quick revision of what we have done in the last session. हमने पिछले सेशन में we have compared properties of transverse waves and longitudinal waves. तो आपको properties अच्छे से याद है, ये assumption है, but in any case हम एक बार quickly properties देख लेंगे वापस से very quickly. So first of all, you know transverse wave is a wave in which particles of the medium propagate in a direction perpendicular to the direction of propagation. So you should know mechanical wave, transverse mechanical wave में the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation, whereas for longitudinal the direction of vibration is parallel to the direction of propagation. तो पहला प्रॉपर्टी ट्रांसवर्स वेव का यही था, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली बट विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. तो जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ऑल दोस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. द ओनली थिंग इज दे वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ऑल दोस पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड frequency, whereas in case of longitudinal wave the particles vibrate parallelly and with same amplitude and frequency. तो उसके बाद जो next property था, as you know, when a transverse wave propagates through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough, right? And you know crest are maximum positive displacement points and trough are points of maximum negative displacement. Then if you remember, when a longitudinal wave propagates through a medium, the medium gets divided into alternate compressions and rarefactions. Compressions are regions of high pressure and you know rarefactions are regions of low pressure and low density. Then अगला प्रॉपर्टी जो था, when a transverse wave, जब एक transverse wave एक मीडियम से जाएगा, there is no change in, there is no variation in pressure or density of the medium. So when a transverse wave propagates through a medium, there is no variation in pressure and density. Whereas of course हमने तो यहाँ पे बोल ही दिया कि longitudinal wave में there are compressions are regions of high pressure and density and rarefactions which are regions of low pressure and density. So when a longitudinal wave propagates through a medium, there is variation of pressure and density. तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर है, अलग अलग डेंसिटी है, right? Then the wavelength is the distance between two successive particles which are in same phase. और यहाँ पे दो सेम फेज के पॉइंट्स, दे आर क्रेस्ट और दे आर ट्रफ. सो द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. यहाँ पे जो दो सेम फेज के पॉइंट्स आते हैं, दे आर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस. सो द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन वाज डिफाइंड एज वेवलेंथ. देन वी सॉ कि transverse wave can propagate through solids and on the surface of liquids, whereas longitudinal waves can propagate through solids, liquids and gases. उसके बाद the property that we saw, ये जो crest और trough बनता है in case of transverse wave, this crest and trough they advance, मतलब they progress, they move ahead. वो वहीं पे नहीं रुक जाएगा. So this crest will keep on moving ahead, advancing, and trough also advances. So when a transverse wave propagates, crest and trough advance through the medium. Similarly, when a longitudinal wave propagates, compressions and rarefaction advance through the medium. और ये जो advancing crest and trough है transverse wave के केस में, और ये जो advancing compression और rarefaction है longitudinal wave के केस में, they carry energy from one point to another. So the advancing crest and trough carry energy from one point to another. Similarly, advancing compression and rarefaction, they carry energy from one point to another. Then
अगर किसी मीडियम से ट्रांसवर्स वेव को पास होना है तो द मीडियम मस्ट possess इलास्टिसिटी ऑफ शेप। इलास्टिसिटी ऑफ शेप मतलब ये था कि वेव पास होने के बाद तो पार्टिकल्स शुड गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, इट शुड गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। एक बार आपने एक रस्सी ले लिया, एक दीवार पे आपने उसको बांध दिया एंड यू आर शेकिंग इट, राइट? तो व्हेन यू शेक इट उसका शेप चेंज होता है। तो एक बार आपने डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब डिस्टरबेंस को हटा दिया, Once you remove disturbance, what do you expect is कि ये जो शेप चेंज हुआ था स्ट्रिंग का, ये वापस से ओरिजिनल शेप पे जाना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी से दैट द मीडियम मस्ट possess प्रॉपर्टी ऑफ elasticity of shape. And in case of longitudinal wave, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन है या फिर रेयरफैक्शन है। कंप्रेशन मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जहां पे एयर कंप्रेस हुआ है, मतलब जहां पे वॉल्यूम कम हुआ है। और रेयरफैक्शंस आर द रीजन्स जहां पे डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होना मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा होना। तो यहाँ पे इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जब एक मीडियम से लॉन्गिट्यूडनल वेव पास होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। एक बार वेव पास हो गया तो वॉल्यूम शुड अगेन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो द मीडियम मस्ट possess इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो ये प्रॉपर्टीज थे, दिस आर द प्रॉपर्टीज दैट वी सॉ। और लास्ट प्रॉपर्टी में देखा था ट्रांसवर्स वेव के लिए पोलराइजेशन इज एप्लीकेबल। सो ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, मतलब वाइब्रेशंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक अनपोलराइज्ड वेव है। अनपोलराइज्ड वेव वो वेव होता है जिसमें पार्टिकल्स के मीडियम हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। सो द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, एग्जांपल भी बताया था कि एक रस्सी ले लिया आपने, यू टेकन अ स्ट्रिंग, एक दीवार पे बांध दिया एंड यू आर शेकिंग इट अप एंड डाउन, देन साइडवाइज, देन एट सम एंगल, राइट? तो इसको बोलते हो अनपोलराइज्ड वेव। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। देन जब ये वाइब्रेशंस को आप एक स्मॉल विंडो से पास करोगे तो इन दैट केस क्या होगा कि सिर्फ एक ही वाइब्रेशन पास होगा। कौन सा वाइब्रेशन पास होगा? जो इस विंडो को पैरेलल होगा, और बाकी सारे वाइब्रेशंस कहां गए? दे आर ब्लॉक्ड। उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो अनपोलराइज्ड वेव बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड वेव, क्योंकि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस विंडो ओनली वन वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन इन ओनली वन प्लेन इज पासिंग थ्रू। यहाँ पे सारे प्लेन के वाइब्रेशन थे और विंडो से पास होने के बाद यू हैव ओनली वन। तो इन दिस केस ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ये लास्ट प्रॉपर्टी था। एंड इन केस ऑफ longitudinal waves cannot be polarized। क्यों cannot be polarized? क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो पैरेलल है, मतलब चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो रेयरफैक्शन हो, इट कैनॉट बी ब्लॉक्ड, वो पास हो जाएगा, राइट? देन बेस्ट एग्जाम्पल, आप जो सनग्लासेस यूज करते हो, दो सनग्लासेस आर डूइंग द सेम थिंग। ये जो सन से सनलाइट आता है, ऐसे तो सनलाइट बोलते हो, लाइट कमिंग फ्रॉम सन, इट हैज वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो डायरेक्ट देखोगे तो देन यू विल लूज योर आई, मतलब विजन गया, राइट? तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको इंटेंसिटी कम करना होता है। तो कैसे कम करते हैं? वी पुट सम काइंड ऑफ ग्लासेस, राइट? तो वो जो ग्लासेस होते हैं सन ग्लासेस, एंड दे आर लिटिल एक्सपेंसिव, वो आपको 100-200 में नहीं मिलेगा, ओके? क्योंकि यू गो एंड बाय एंड देन यू सी एंड मे बी आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू योर आई देन। तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लेना पड़ता है वो। तो अच्छा क्वालिटी का अगर नहीं होगा तो वो बोलेंगे दिस आर सन ग्लासेस, लेकिन उसमें पोलराइजर तो यूज नहीं किया, एक सादा मटेरियल लगा के उसको काले कलर का फिल्म लगा दिया एंड लुक्स लाइक सन ग्लासेस। तो दैट डज नॉट रियली ब्लॉक many vibration, it allows vibration to pass through. So good quality sunglasses, they are good polarizers, मतलब वहां से vibrations pass नहीं हो सकते, एक ही pass होगा। तो after you use the sunglasses many vibrations are blocked, तो intensity कम हो जाता है
एंड थोड़ा सा आपको जो सनलाइट प्रॉब्लम दे रहा था अभी कम हो जाएगा, सो दैट इज व्हाई यू यूज सनग्लासेस। देन इतना होने के बाद नाउ लेट्स गो अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक। So remember, when we revise, revision is supposed to be a very quick one. So it is supposed that assume that कि आप already last lecture पे थे, physically भी mentally भी, और नहीं थे तो घर पे जाके revise किया होगा। And when we start with a new topic, it is little slow. तो अब we will first see what is a progressive wave. जैसे नाम में है प्रोग्रेसिव, जैसे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है ना, मतलब समथिंग विच इज एडवांसिंग, है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब अ वेव विच कंटिन्यूअसली ट्रेवल्स इन अ गिवन मीडियम। तो देयर इज अ वेव which is continuously traveling in a given medium, such wave is called as progressive wave. So a wave which travels continuously in a given medium is known as progressive wave. Right? अब progressive wave in reality is called a simple harmonic progressive wave. I am just introducing this concept here. ये concept आप 12th में in detail देखोगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक वर्ड आने वाला है आगे, बिकॉज हमको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है वेव का। अभी तक हम वेव को सिर्फ थ्योरेटिकली ही डिफाइन कर रहे थे। वी वर जस्ट सेइंग वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, ये होगा, वो होगा, बट मैथमेटिकली यू हैव टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड, whenever any wave, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, when any wave passes through a medium, the particles of the medium vibrate होता है ना। अगर ट्रांसवर्स वेव होगा तो वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये जो मोशन है वाइब्रेशनल मोशन, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। You already know this, but anyway, I'll just put it very quickly here. So when there is a wave, ऐसा आपके पास एक wave है, and of course you know by now कि each particle of the medium is vibrating. Vibrating मतलब it is performing to and fro motion about mean position, और mean position मतलब ये green colored का line, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होता रहता है, राइट। ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है पार्टिकल का, टू एंड फ्रो मोशन है पार्टिकल का, इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों सिंपल हार्मोनिक? अगर आपको मतलब पता तो होगा ही, ट्रिग्नोमेट्री में दो फंक्शंस है, साइन एंड कोसाइन। इन दोनों फंक्शन का एक नाम है हार्मोनिक। तो ये जो साइन और कोसाइन फंक्शंस है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शंस, राइट। अब ये जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, पता है ना। एक ऑब्जेक्ट, मान लो एक ऑब्जेक्ट आपके पास है मीन पोजीशन पे, और जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है तो आप बोलते हो पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, ओरिजिन से वो नए पोजीशन पे गया, सम पोजीशन x। ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच वेव इज प्रोपोगेटिंग, जिस मीडियम से वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसका हर एक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, राइट। तो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहीं तो होगा,
जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, इट इज हियर, मे बी इट इज समवेयर ओवर हियर, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज समवेयर, राइट। हो सकता है मीन पे हो सकता है एम्पलीट्यूड पे हो, कहीं पे भी हो सकता है वो, बट द आइडिया हियर इज, ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, ये जो पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होता है, यहाँ पे सिर्फ मैं वाइब्रेशन बता रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, और मीडियम के जो पार्टिकल है दे आर परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अबाउट वाई एक्सिस, है तो मोशन वही, या तो मोशन वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन होगा या फिर अलोंग एक्स एक्सिस होगा, है तो वही बेसिकली। तो ये जो वाइब्रेटरी मोशन होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, ये आता है साइन या कोसाइन का फंक्शन, साइन ऑफ समथिंग वो बाद में देखेंगे, वो 12th में देखेंगे, राइट। और आपको पता है अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt। अगर x में साइन है तो v में कोसाइन आएगा। फिर अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और अगर यहाँ पे कोसाइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, करेक्ट। अगर डिस्प्लेसमेंट में साइन है तो वेलोसिटी में क्या आएगा, कोसाइन, वेलोसिटी में कोसाइन है तो फिर एक्सेलरेशन में क्या आएगा, साइन। तो डू यू सी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है साइन और कोसाइन, लेकिन साइन और कोसाइन का क्या नाम था, हार्मोनिक। तो ये मोशन के इक्वेशंस में क्या आ गए, हार्मोनिक फंक्शंस, इसके लिए इसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन of this vibratory motion has sine और cosine, hence इसके लिए हम मोशन को बोलेंगे हार्मोनिक मोशन, करेक्ट। लेकिन इसको सिंपल भी बोल रहे हैं, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो अब कनेक्ट करो, हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव था, प्रोग्रेसिव वेव मतलब a wave which continuously travels, it does not stop, it keeps on traveling। तो जब एक वेव कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम का हर एक पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो वेव कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है, इसके लिए इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। और क्योंकि पार्टिकल का हर एक मीडियम का हर एक पार्टिकल इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है हार्मोनिक, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो अ प्रोग्रेसिव वेव in which particles of the medium perform simple harmonic motion is known as simple harmonic progressive wave। So you can say a progressive wave in which particles of the medium perform simple harmonic motion is known as simple harmonic progressive wave। Simple harmonic progressive wave। Good। याद रखना है, बहुत काम की चीज है, बिकॉज हमको आगे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है, अगर यही नहीं पता होगा तो इक्वेशन नहीं बनेगा, वेरी सिंपल। तो यू शुड नो व्हाट यू शुड नो, प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव व्हिच कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स इन अ गिवन मीडियम, रुकता नहीं है वो, इट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। दूसरा, जब वो वेव ट्रैवल करता है तो हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है, इसलिए वेव को क्या बोलते हो, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है।
and these properties are similar to the properties of ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम दो ही प्रॉपर्टीज की बात करेंगे क्योंकि बाकी सारे कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। So these properties are more or less similar to what you have already seen. Property number 1. All the particles of the medium perform simple harmonic motion, मतलब oscillation with same amplitude and same frequency या फिर same period. All the particles of the medium perform oscillation. इसको मैं अगली बार से simple हार्मोनिक मोशन बोलूंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब आप बोलोगे क्या नया है, ट्रांसवर्स वेव में भी वही था, लॉन्गिट्यूडनल में भी वही था। तो ये सिर्फ ऐसा है कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे हमने कहीं पे भी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन की बात नहीं की, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कैन आल्सो बी ट्रांसवर्स और इट कैन आल्सो बी लॉन्गिट्यूडनल। तो हमने कहीं पे भी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बस पार्टिकल्स आर oscillating, that's it. Number 2, सिर्फ यहाँ पे फेज जो है state of vibration. What is state of vibration? Given by displacement, direction of velocity and number of oscillation. तो phase of vibration मतलब state of vibration changes from particle to particle, ये तो पता ही है। एक वेव है, अगर एक वेव पे कोई भी पार्टिकल ले लो आप, ये पार्टिकल अलग स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, नेक्स्ट पार्टिकल अलग स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, इवन दो ये दोनों का नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम है 1 इवन दो दोनों का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम है, बोथ आर गोइंग अप, बट व्हाट इज डिफरेंट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मैंने बताया था वहां पे कि स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन इज गिवन बाय 3 थिंग्स: डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो इवन दो इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम है, इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम है दोनों का, बट डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, बट व्हाट इज डिफरेंट इज फेज। सो ईच पार्टिकल हैज different state of oscillation, that is all you can say, right? अब ये दो चीजें they are really important because हमको अब वेव को मैथमेटिकली लिखना है, बिकॉज हम बार बार तो ऐसा बता नहीं सकते कि वेव में ये पार्टिकल मीन पे है, ये पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल का नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 1, उसका दूसरा, उसका चौथा। तो इन जनरल वी हैव टू राइट डाउन अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब अ वेव। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of simple harmonic wave, of simple harmonic progressive wave। आपके बुक में इसको सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव नाम दिया है तो ठीक है, ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो आपका प्रोग्रेसिव वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका आपको डेरिवेशन नहीं करना, आपको सिर्फ इसका इक्वेशन पता होना चाहिए और आपको जस्टिफाई करते आना चाहिए कि ऐसा ही क्यों लिखा। तो नंबर 1, हमको क्या क्या पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। रिमेंबर, जब आपके पास एक वेव होता है तो इन दैट केस व्हेन यू हैव अ वेव,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्पेसिफाई सम डायरेक्शंस। एक तो ये है आपके पास y एक्सिस और ये है x एक्सिस, राइट। क्या क्या जरूरत पड़ेगा? देयर आर थ्री थिंग्स। एक तो टाइम होना चाहिए उस इक्वेशन में, क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेव है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? इट कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग, राइट। तो टाइम उस इक्वेशन में दिखना चाहिए। दूसरा, जब वेव फॉरवर्ड जा रहा है, वैसे वेव कौन सी डायरेक्शन में फॉरवर्ड जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स भी दिखना चाहिए, बिकॉज वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो यू शुड हैव एक्स इन दैट इक्वेशन। नंबर 3, जब ये वेव ट्रेवल होगा तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम दे आर परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, बट ऑसिलेशन इज अबाउट विच एक्सिस? y एक्सिस, तो वहां पे y भी दिखना चाहिए। तो रिमेंबर वन थिंग, जब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है किसका? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में तीन चीजें हैं। एक, प्रोग्रेसिव बोला मतलब द वेव इज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग इन अ गिवन मीडियम, मतलब टाइम वहां पे होगा, विथ टाइम इट इज ट्रैवलिंग, ओके। नंबर 2, बिकॉज द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, या तो पॉजिटिव एक्स या तो नेगेटिव एक्स। वेव अगर पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल करता है तो अलग इक्वेशन बनेगा, वेव अगर नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करता है तो अलग इक्वेशन बनेगा, वो हम देखेंगे बाद में डिफरेंस। एंड जब वेव पास होता है मीडियम से, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव का, फिर आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, हाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव का भी बनेगा, वो अलग होगा, बट यू रिमेंबर इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, if the wave is going forward in x direction, particles vibrate along y direction, तो जो डिस्प्लेसमेंट है किसका? पार्टिकल का, that is along y। तो इस केस में what you will see is y equal to a, where a is amplitude, मतलब maximum displacement of the particle, तो y equal to a sin of साइन क्यू, क्योंकि पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब साइन या कोसाइन, राइट। तो साइन दिखना चाहिए या तो कोसाइन दिखना चाहिए, और हम लोग साइन यहाँ पे लिखेंगे, साइन क्यू लिखेंगे। आई विल टेल यू दैट आल्सो। थोड़ा सा 12वीं का अभी से ही डिटेल्स करते जाओ, क्योंकि लगने वाला है अभी या फिर कल, पढ़ना तो है। तो सी व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, और इसको बाद में हम y एक्सिस पे लेके जाएंगे। फिलहाल x एक्सिस की बात करो। अगर पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट हो रहा होता, सो इफ द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलोंग x एक्सिस, और पार्टिकल ने अगर अपना मोशन मीन से स्टार्ट किया होता, यहाँ पे मीन मतलब ये ओरिजिन, तो व्हेन पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, देन उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में साइन आता है। अगर पार्टिकल वही मोशन को एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में कॉस आता है, राइट। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट किया तो। अब ये जो वेव की बात आप कर रहे हो, इसको फिलहाल साइड में रख दो, राइट। गुड। तो पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। तो जब पार्टिकल स्टार्टिंग में जीरो पे हो तो इक्वेशन में क्या आता है? साइन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन, क्योंकि पार्टिकल शुरू में कहा था? 0 पे। y इक्वल टू 0 पे मतलब पार्टिकल कहा था? मीन पे। अब इसी चीज को आप ऐसा भी देख सकते हो, यू कैन से ये जो वेव की हम बात कर रहे थे, पार्टिकल वॉज एट मीन पोजीशन। जब वेव पास होगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा। कहां से स्टार्ट किया था? 0 से स्टार्ट किया तो क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या लिखा है? y इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन। वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर।
Then I told you कि you will have x and you will have y, तो आ गया ना, y आ गया, साइन भी आ गया, x and t, तो kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो फाइव है इसको हम बोलते हैं फेज एंगल, और ये फेज एंगल क्या है फिलहाल इसकी चिंता मत करो, हम बाद में देखेंगे। तो फाइव इज सम कांस्टेंट एंगल, सम कांस्टेंट एंगल। तो कांस्टेंट एंगल क्या है हम वो भी देखेंगे, बट फिलहाल ये इक्वेशन समझ लो। तो एज आई टोल्ड यू कि डेरिवेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस, आपको सिर्फ समझ के लेना है कि क्यों आया ऐसा इक्वेशन। तो माय एक्सपेक्टेशन इज अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि y क्यों आया, y क्यों आया, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अबाउट y एक्सिस, अबाउट y डायरेक्शन, मतलब इन y डायरेक्शन। साइन क्यों आया, because the particle start from mean position, very good, good। t क्यों आया, because progressive wave है, तो this wave will continuously travel with time, okay। then x क्यों आया, because the direction of propagation is x, very good। अब ऐसा है कि आपको ये जस्टिफाई करना है कि विथ टाइम, मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो लेट अस से एट t इक्वल टू सम टाइम t0, सम कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम मतलब आपने वेव को फ्रीज कर दिया, जब आप वेव को फ्रीज कर दोगे मतलब फोटो निकाल लिया, फिर भी साइन दिखना चाहिए, साइन में दिखना चाहिए ना। तो इफ आई पुट t इक्वल टू t0 मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टाइम, तो y इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस kx माइनस ओमेगा t की जगह पे क्या डालेंगे t0 प्लस फाइव। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो फाइव है ये सम कांस्टेंट एंगल है, ये कांस्टेंट और t भी कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, राइट। तो कांस्टेंट आ गया तो अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो y इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस कांस्टेंट, राइट। हाँ, constant plus constant is a constant, constant minus constant is a constant, constant multiplied by a constant is a constant, constant divided by a constant is constant, constant raised to constant is a constant। करके देखो, 2 plus 2 4, constant plus constant constant, 3 minus 2 1, constant minus constant is constant, 4 by 2 constant by constant is a constant, 4 into 2 constant into constant is 8, again a constant, 2 raised to 2 constant raised to constant is constant। तो फाइव कांस्टेंट है, पहले बोल दिया मैंने, सम एंगल व्हिच इज फिक्स नॉट चेंजिंग। फिर हमने बोला कि ओमेगा टी, लेकिन हमने क्या बोला कि एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, अभी 3 बजे फिक्स कर दिया ना, 3 बजे मतलब टाइम को फिक्स कर दिया, तो टाइम को फिक्स कर दिया तो t0 कांस्टेंट हो गया, राइट। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही था ओमेगा, तो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, राइट। तो व्हाट डू यू सी, यहाँ पे x ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही कि हो रही है, वेरिएबल, यस। तो अगर आपने टाइम कांस्टेंट किया है तो x इज चेंजिंग, x इज चेंजिंग मतलब डिस्टेंस इज चेंजिंग, मतलब हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, डबल पीरियोडिसिटी याद है, राइट, करेक्ट। आप x डिस्टेंस कोई भी ले लो, if you see from here you still see a sine wave, if you see from somewhere some other distance you still see a sine wave। अगर आपने और किसी x डिस्टेंस में देखा होगा तो you still see a sine wave। इसका मतलब अगर टाइम कांस्टेंट भी हुआ तो भी ये वेव साइन ही रहेगा, कॉस टैन कॉट कुछ नहीं बन रहा है, इट इज ऑलवेज साइन। तो इसका मतलब सही है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। मैंने जैसे बोला आपको डिराइव करना ही नहीं है, आपको बोलना है ऐसा आएगा, अभी ऐसा आएगा तो फिर कोई पूछ सकता है हाँ अभी ऐसा आया 10 मिनट के बाद कैसा होगा, तो आपने 10 मिनट के बाद ठीक है मैं t के लिए 10 मिनट डाल देता हूँ, कांस्टेंट माइनस और कांस्टेंट इज कांस्टेंट, हाँ फिर भी तो साइन है ना, तो 10 मिनट के बाद भी साइन ही रहेगा, वैसा ही दिखेगा वो, करेक्ट, गुड। अब कोई ऐसा भी पूछ सकता है
इस पोजीशन पे 1 सेंटीमीटर पे साइन है, 100 सेंटीमीटर पे क्या होगा? मतलब आप सेकेंड केस में आप डिस्टेंस को फिक्स करोगे, तो व्हाट विल यू डू? यू विल से कि ओके, पहले मैंने टाइम को फिक्स किया, अब मैं डिस्टेंस को फिक्स कर लूंगा। अब मैं बोलूंगा एट सम कांस्टेंट डिस्टेंस, एट x इक्वल टू सम कांस्टेंट डिस्टेंस x0, तो y इक्वल टू a साइन ऑफ kx0 माइनस ओमेगा t। अभी t0 मत डालना, अभी सिर्फ x की जगह पे x0, राइट? अब दिस इज अ कांस्टेंट, क्योंकि k कांस्टेंट था, x0 कांस्टेंट और phi तो वैसे भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू a साइन ऑफ सम कांस्टेंट माइनस ओमेगा t। आप बोलोगे कि देखो डिस्टेंस फिक्स भी कर दिया तो भी मुझे यहाँ क्या दिखता है, मतलब इक्वेशन करेक्ट है। मतलब जो इक्वेशन हमने डिराइव किए बिना लिखा है, द इक्वेशन वी आर यूजिंग फॉर दिस वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव, हमने विदाउट डेरिवेशन लिखा है। क्यों लिखा था ऐसा? क्योंकि y is coming from motion of particles, x is coming because wave is going ahead along x direction, t is coming because it is progressive wave। तो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया 10 मिनट के बाद, तो बोला ठीक है मैं कांस्टेंट कर रहा हूं टाइम को, फिर भी देखोगे साइन ही है। कोई बोलेगा 10 सेंटीमीटर के बाद, तो बोलेगा तो आप बोलो ठीक है ओके आई विल पुट हियर 10 सेंटीमीटर कांस्टेंट, देन यू विल से देखो कांस्टेंट माइनस ओमेगा टी तो आया, लेकिन अंदर वापस से साइन है, तो साइन है तो मतलब ये करेक्ट इक्वेशन है, साइन का टाइम नहीं बना वो। गुड। अब एक बार आपने इक्वेशन लिख दी, एज आई टोल्ड यू डोंट वरी अबाउट नोट्स, नोट्स विल बी गिवन टू यू। आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, एक्सप्लेन तो हो गया, जस्टिफिकेशन हो गया, आपको बताना पड़ेगा के क्या है, ओमेगा क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। So what is K? Of course you need to know what is K. K is called as wave number और इसका फॉर्मूला आता है 2 pi by wavelength. Omega is angular frequency, angular frequency और इसका फॉर्मूला आप लिखते हो 2 pi times of linear frequency n, where n is called as linear frequency। तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। That's it. Done. इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है वहां पे। So this is what you need to remember. So now onwards, if I ask you what is the equation of simple harmonic progressive wave, y equal to a sine of kx minus omega t plus phi. But this wave is traveling along positive x direction. If the wave is traveling along negative x direction, so y equal to a sine of kx minus की जगह पे plus omega t plus phi. So this is the wave traveling along negative x, traveling along negative x direction. तो जब वेव पॉजिटिव के अलोंग ट्रेवल करता है तो यहाँ नेगेटिव आता है, जब वेव नेगेटिव एक्स एक्स में जाता है तो बीच में पॉजिटिव आता है। ऐसा क्यों आता है वो 12th में डिराइव करेंगे, दैट विल बी देयर इन 12th टू डिराइव, बट अभी सिर्फ इक्वेशन याद रखने हैं। गुड। तो वंस यू नो दिस, अब अगली चीज आपको पता होनी चाहिए स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स। स्पीड है ना, वेव है तो वेव का स्पीड होगा, बिकॉज वेव्स आर ट्रेवलिंग, एनीथिंग व्हिच ट्रेवल्स हैज अ स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव मतलब स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इन शॉर्ट, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग मतलब प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग विच इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। अब ऐसा है कि आपके पास दो टाइप के प्रोग्रेसिव वेव है, एक है ट्रांसवर्स, एक है लॉन्गिट्यूडनल। तो दोनों का स्पीड का इक्वेशन अलग अलग बनेगा और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये स्पीड डिपेंड किस पे करेगा। तो दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव है ना, ये रस्सी पे गया मतलब मैकेनिकल, मीडियम लगा मतलब मैकेनिकल, राइट। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इट ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, एयर या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड।
तो जहां जहां पे मीडियम लगेगा दैट दोज आर मैकेनिकल वेव्स। अब आपको ये भी पता है कि मैकेनिकल वेव्स के हमने देखे थे प्रॉपर्टीज। डू यू रिमेम्बर, हमने बोला था कि मैकेनिकल वेव जिस मीडियम में से पास होंगे उस मीडियम के कुछ प्रॉपर्टी होने चाहिए। याद नहीं होगा तो है, एविडेंसेस आर देयर कि हमने ये किया है। वी हैव सीन, यू सी, वी हैव सीन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच अ मैकेनिकल वेव पासेस, राइट। तो मैकेनिकल वेव जिस मीडियम से पास होगा वो किस पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी, right? Also on density in case of longitudinal wave, right? Elasticity. अब इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, तो ट्रांसवर्स वेव के केस में इसका जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। अब इलास्टिसिटी हम जब सीखेंगे तब डिटेल में देखेंगे हम लोग, पर अभी पता होना चाहिए कि बेसिकली हाँ, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। Formula is simple. Speed of transverse wave on a stretched string V is under root of T by M, where T is tension in the string and M is mass upon length, mass per unit length. Formula इतना ही पता होना चाहिए. You don't have to write a lot. You just have to say, transverse wave में speed is this. ना, लेकिन सिर्फ basics you need to know कि T क्या है, टेंशन, और वो आया कहां से, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो पहले मैं m बता देता हूं, इट्स वेरी सिंपल। मान लो हमारे पास एक मीडियम था जो एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग का टोटल मास 10 किलोग्राम है और इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ 5 मीटर है। फिर मुझे ये पता करना है कि 1 मीटर में कितना किलोग्राम, कितना 2। अब क्या करोगे, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे। इसका मतलब 1 मीटर में 2 केजी। तो m इज मास पर यूनिट लेंथ, ओके, और इसका यूनिट आएगा किलोग्राम पर मीटर। डेंसिटी है ये, आपने डेंसिटी सीखा है ना। व्हाट इज डेंसिटी? मैंने बताया था 3 टाइप की डेंसिटी होती है। एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी, जो आप बोल रहे हो मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी। 1 मीटर क्यूब में कितना मास। फिर मैंने बताया था अगर एक सरफेस हो, एक डिस्क है आपके पास, एक टेबल है आपके पास, उसके ऊपर मास रख दिया, तो यूनिट एरिया में हर एक 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास, उसको बोलते हो सरफेस डेंसिटी। और 1 मीटर लेंथ में कितना मास, उसको बोलते हो लीनियर डेंसिटी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीड डिपेंड्स ऑन लीनियर डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना लीनियर डेंसिटी कम होगा उतना ही स्पीड, वॉल्यूम नहीं, स्पीड ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव ज्यादा होगा। क्योंकि लीनियर डेंसिटी कम होना मतलब लाइट वेट स्ट्रिंग होना, तो जितना लाइट वेट स्ट्रिंग होगा उतने वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे, मतलब उतना ज्यादा स्पीड होगा। और दूसरा डिपेंड करता है टेंशन इन द स्ट्रिंग पे। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब क्या, मतलब ऐसा है, अगर मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट होता, मतलब ये ऊपर, हमने ऊपर की सीलिंग पे एक रस्सी बांध दी और रस्सी को हमने बांध के नीचे कुछ नहीं लगाया, तो क्या होगा, लूज, राइट। ये लूज है, अभी लूज हमको नहीं चाहिए क्योंकि इस पे वेव जा ही नहीं सकते। यू नीड टू हैव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए आप एक लोड लगाते हो, यू पुट अ वेट डाउन हियर, तो यू पुट अ लोड हियर, ओके। अब ये जो लोड होता है, बेसिकली ये जो लोड है mg, इट प्रोवाइड्स टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा स्पीड। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंशन इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। ये आप इलास्टिसिटी में सीखोगे, तो अभी सिर्फ वर्ड समझते जाओ। रीस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय रीस्टोरिंग फोर्स? The force which restores the original state.
दो फोर्स होते हैं, एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स जो शेप को बिगाड़ता है, और रिस्टोर मतलब जो शेप को वापस अपने ओरिजिनल शेप पे लाता है, उसको बोलते हो रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आया? तो इमेजिन आपके पास एक रबर है, होगा ना, वो खेलते थे बचपन में इरेजर से, राइट? क्या करते हो उसको? यूज तो कम ही करते हो आप, लेकिन यू कीप ऑन कंप्रेसिंग इट, स्ट्रेचिंग इट, कंप्रेसिंग इट, स्ट्रेचिंग इट, फिर छोड़ देते हो, फिर अपने आप वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज हैपनिंग? डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ सम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप इसको स्ट्रेच करोगे मतलब मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस बढ़ता है तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है। आपने सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जो बाहर की तरफ है, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, राइट? स्ट्रेच कर रहे हो, यहाँ पे भी वायर स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है ड्यू टू लोड, और यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट? तो व्हेन यू स्ट्रेच इट, distance between molecules increases. When distance between molecules increases, there is something called as van der Waals forces. केमिस्ट्री में सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, van der Waals forces. So then these molecules start attracting each other. हमको दूर नहीं जाना, we want to stay together, right? ये जालिम दुनिया वाले पार्डन दी फॉर सच जोक, याद रहता है इससे, राइट? फिर क्या होगा, जैसे ही फोर्स हटाओगे, ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल्स विल अगेन गो टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये जो बाहर का फोर्स था वो था एक्सटर्नल, और वो फोर्स क्या कर रहा था, शेप को डिफॉर्म कर रहा था, तो क्या बोलोगे, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो ये फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स अंदर डेवलप हुआ, उसको आप बोलते हो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, करेक्ट? तो जब जब एक्सटर्नल फोर्स होगा तब तब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इट गिव्स राइज टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। जितना ज्यादा स्ट्रिंग में टेंशन, उतना ज्यादा ट्रांसवर्स वेव का स्पीड उस वायर पे, राइट? इसका मतलब मैंने यहाँ पे 10 किलो लगाया तो स्पीड कम होगा, मैंने यहाँ पे 20 kg लगा दिया तो टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन, इसका भी डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि ये जो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है उसका स्पीड एक स्ट्रिंग पे अंडर रूट ऑफ T/m आता है, जहां पे T होता है टेंशन और टेंशन आता है रिस्टोरिंग फोर्स। इतना ही बोलना है। मैंने आपको इतना डिटेल क्यों बताया, क्योंकि इलास्टिसिटी हमारा बाकी है, जब होगा तब ये भी कवर होगा उसमें, राइट? और वेयर m इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। सो अब बात रह गई स्पीड ऑफ longitudinal wave, that we will do in the next session.